Hello students, how are you? I hope you all are very fine. So, in the last lecture, we have studied about the water. Since last two lessons, we are discussing about the water. Okay, that where does water come from? Okay, last lesson में हमने क्या पढ़ा? Where does water come from? So what we have learned that? We have learned that the all water we get, it is come from the rain. Okay, and in the previous lesson, that is lesson number 8, our need for water. Okay, in that lesson we have discussed about the importance of water. Okay, how water is important for living thing. Okay, so since in the last two lessons we are discussing about the water, and water is one of the most important needs of living thing. Okay, so now in this lesson we are going to start our next lesson, that is lesson number 10, more about water. So in this lesson we are going to discuss about some more information of water. We are discussing the concept that is water. Okay, so now open your book, page number 58. Okay, while watching your lectures video, the textbook is necessary at that time. Okay, textbook जब आप लोग वीडियो देखते हो लेक्चर्स का, तब आपके पास टेक्स्ट बुक होना ज़रूरी होता है. ओके, अच्छे से टेक्स्ट बुक ओपन करके आप लेक्चर सुनो. ओके, सो नाउ लेसन नंबर 10, मोर अबाउट वाटर. ठीक है, पानी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन इस लेसन में दी गई है. ठीक है, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा पानी हमें कहाँ से मिलता है, दैट वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन. ओके, एंड वी रेन का जो पानी है, सो इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट वाटर. मीन्स वी हैव टू स्टोर वाटर टू सेटिस्फाई आवर नीड ऑफ वाटर. ओके, जो कुछ भी पानी है, जो नीड्स है हमारी पूरी हो, पानी वाली जो नीड्स है, जो काम करने के लिए पानी लगता है, तो पानी इजीली अगर अवेलेबल होना है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टोर वाटर. ओके, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, एट दैट टाइम वी हैव टू स्टोर वाटर. व्हेनेवर वी आर स्टार्ट टू store water, at that time we can easily overcome the problem of shortage of water. Okay, now turn to some detailed information of the water, related to water, that is more about water. Okay, so first try this. Here is one experiment for you. Okay, try this. Take some clean water in a glass. Take some clean water in a glass. ठीक है, ग्लास लेना है, उसमें क्लीन वाटर हमें लेना है. लुक एट इट्स कलर, और अब हमें क्या करना है, कलर को देखना है, उसके पानी का जो कलर है वो हमें देखना है. व्हाट कलर इज इट, पानी का क्या कलर होता है. सो लुक एट योर बुक. हियर इज girl and he is looking at the water, and पानी का कौन सा कलर होता है. ठीक, हम लोग पानी पीते हैं, पानी सबने देखा है, कौन सा कलर होता है पानी का. ठीक है, सो लुक एट हियर. यहाँ पे एक पानी का गिलास है, उसमें पानी है और नीचे कॉइन डाला हुआ है. हियर इज अ वाटर, हियर इज अ ग्लास, and glass is full of water and coin is inside the glass. ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास मैंने लिया है, उसमें पानी भरा हुआ है, क्लीन वाटर लिया है, और उसमें हमने कॉइन डाला है. अगर हमने यहाँ से देखा नीचे पानी में, ग्लास के अंदर हमने अगर देखते तो आपको कॉइन नजर आएगा क्या. Yes, we can easily see the coin.
दिखेगा, मीन्स वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शक, ओके, पारदर्शक, इट मीन्स व्हाट, water is transparent, transparent means पारदर्शक. So look at here, new term, it is a transparent, it is a new term for you, transparent. So what is the meaning, what is mean by transparent? If you can see through a substance, it is said to be transparent, okay. So look at here, if you can see through a substance, substance means पदार्थ, जो कुछ भी है पदार्थ, उसके थ्रू हम अगर देख सकते हैं तो क्या होता है, it is said to be transparent. वो क्या होती है चीज, वो चीज ट्रांसपेरेंट है. यहाँ पे देखो हमने पानी लिया है, राइट, सो वी कैन सी coin through the water, right, coin is at the bottom of the glass, right, coin कहाँ पे है, नीचे है ग्लास में, सबसे नीचे, तो ऊपर से हम coin देख सकते हैं, yes, we can see the coin through water, means the substance, means the water, water is what, transparent, ठीक है, जो कुछ भी substance है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है. पानी क्या है अब, ट्रांसपेरेंट, ठीक है. Now look at here, here is another glass and this glass is full of milk and here is also coin inside the glass. ये दूसरा glass है, इसमें milk अगर हमने लिया, ठीक है, और coin डाला है, so अगर हमने यहाँ से देखा, so can you see the coin, आपको coin नजर आएगा, no, we can't see the coin, means this is substance, milk, milk को कलर होता है, right, तो means this substance is not transparent, ठीक है. ये जो मिल्क है, मिल्क को कलर होता है, मिल्क का कलर व्हाइट, मतलब कलरफुल जो होता है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता. Then one more experiment we can do, that take another glass of clean water, okay, and put one coin here also, ठीक है, एक ग्लास लेना है, उसमें हमें पानी भरना है, उसमें एक कॉइन और डालना है, देन ये हुआ ट्रांसपेरेंट पानी, ट्रांसपेरेंट है, हम इसमें से कॉइन नीचे जो है वो देख सकते हैं. अगर इफ वी एडेड सम कलर इन वाटर, अगर हमने ये जो पानी है इसमें कलर ऐड किया, कुछ भी रेड, व्हाइट, सॉरी रेड, ब्लैक, ब्लू, जो कलर अगर ऐड किया, ठीक है, ये कलर एडेड वाटर है, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे ब्लू कलर ऐड किया है तो ये ब्लू दिखेगा, मतलब पानी ब्लू हो जाएगा, ठीक है. तो हम क्या, हमें उसमें से कॉइन दिखेगा क्या, नहीं, अगर डार्क कलर हो गया तो इसमें से कॉइन हमको नहीं दिखेगा. मतलब क्या, water has no color. If it is transparent, what we studied that water is transparent, means what, water has no color, okay. So look at your book, तो आपको समझ में आ रहा है पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, means what, पारदर्शक. What is meant by transparent? If you can see through a substance, it is said to be transparent, ठीक है, जो कुछ भी substance है उसके थ्रू, उसके आर पार अगर हम देख सकते हैं तो वो क्या है, transparent. So here water is transparent. It means we can see through the water. Means what, water, अगर हमने कलर ऐड किया, यहाँ पे हमने मिल्क लिया, ये मिल्क का कलर कौन सा है, व्हाइट है, बराबर, इसमें से हम कॉइन देख सकते हैं क्या, नो. और एक एक्सपेरिमेंट, अगर हमने पानी में कलर ऐड किया और उसमें से कॉइन अगर हमने देखना चाहा तो कॉइन दिखेगा, नो. मीन्स व्हाट, वाटर हैज नो कलर, ठीक है. नेक्स्ट, स्मेल अ फ्रेग्रेंट फ्लावर, फ्रेग्रेंट खुशबू
खुशबूदार, सुगंधी। ओके, स्मेल अ फ्रेग्रेंट फ्लावर, डिड यू लाइक द स्मेल? सूंघनी है, फ्रेग्रेंट जो खुशबूदार फ्लावर है वो हमें लेना है और उसे सूंघना है। डिड यू लाइक द स्मेल? ओके, नाउ स्मेल द वाटर। फूलों की खुशबू हमें सूंघी है सबने, अच्छी आती है, बराबर। अब हमें क्या करना है, पानी का स्मेल लेना है। नाउ स्मेल द वाटर, डज इट हैव अ स्मेल? पानी की स्मेल आएगी आपको, इसको स्मेल होती है? नो, वाटर हैज नो स्मेल। देन टेस्ट अ राइप मैंगो और चिकू और गावा। राइप मीन्स पूरा पका हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पका हुआ आम, चिकू या तो गावा जो है वो लेना है, उसे टेस्ट करना है। हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट? उस फ्रूट की टेस्ट कैसी लगेगी? मीठी, स्वीट्स। ओके, इट इज स्वीट। नाउ टेस्ट द वाटर, हाउ डज इट टेस्ट? What does this tells us? ठीक है, स्वीट मैंगो है वो टेस्ट करना है, ठीक है। मैंगो, गवा, चीकू जो कुछ भी है वो टेस्ट करना है, वो कैसे लगेगा? स्वीट लगेगा। अब हमें क्या करना है, पानी को टेस्ट करना है। पानी की टेस्ट कैसी लगती है? मीठी, तीखी, कुछ लगता है? नो, उसको टेस्ट लगती है क्या? नहीं। What does it tells? फिर हमें ये क्या बताते हैं, जैसे कि कलर हमें पानी के थ्रू नजर आता है, मीन्स वाटर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मिल्क के थ्रू अगर हमने देखा उसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं क्या? नहीं, पर वाटर के थ्रू हम देख सकते हैं, मीन्स वाटर हैज नो कलर। ओके, हमने फ्लावर की खुशबू ली, उसकी खुशबू अच्छी आ रही है। पानी की खुशबू, पानी का स्मेल किया, उसकी आ रही है क्या खुशबू? हमें नहीं, मीन्स वाटर हैज नो स्मेल। देन वी हैव, हमने जो फ्रूट्स है वो टेस्ट किए, उसकी टेस्ट हमें मीठी लगी। पानी की टेस्ट की, पानी की टेस्ट लगती है क्या? नहीं। ये सब चीजें हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है? प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल, ठीक है। प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल, ठीक है। प्योर वाटर जो होता है उसको कलर नहीं होता, उसको टेस्ट नहीं होती, उसको स्मेल नहीं होता। अगर ऐसा वाटर है जो आप पी रहे हैं, उसको कलर है, टेस्ट और स्मेल आ रही है, तो वो क्या है? वो वाटर प्योर नहीं है। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये सब चीजें हमें क्या बताती है? प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल। ओके, नाउ न्यू टर्म्स, ट्रांसपेरेंट एंड opaque. So look at here, transparent. I have already discussed with it. So let's read it again. If you can see through a substance, it is said to be transparent. अगर हम किसी चीज के थ्रू देख सकते हैं, किसी चीज के
detail about this terms transparent and opaque. Okay. So read this information at your home and do this experiment at your home also. Okay. So thank you and have a nice day.